सतसंग देह हे आमारे जय बसेছি সঙ্গের আশে আমি বসেছি সঙ্গের আশে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাস पद छाया शोध हे हमारे दिया पद छाया तुम्हार चरण धरि আমি তোমার চরণ ধরি একাকী আমার নাহি পায়ে বড় হরি নাম সংকীর্তনে একাকী একাকী আমার নাহি পায়ে বড় হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ নাম ধরি দেহ কৃষ্ণ নাম ধরি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাস করুণা বৈষ্ণব ঠাকুর दिया पद छाया शोध हे हमारे दिया पद छाया तुम्हार चरण धरि আমি তোমার চরণ ধরি কৃষ্ণ से তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ से কৃষ্ণ से তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ से আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো ধাই তব পাছে পাছে আমি ধাই তব আমি ধাই তব পাছে পাছে আমি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর দাস করুণা
छाया कुमार चरण धरिया कुमार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jai Radha Madhava Kunja Vihari Varadhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Varadhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Jamuna Tirabhanachari Jamuna Radha Madhava Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana
प्रभुपाद प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिविराज का श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। इस्कॉन बुर्ला की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीपाद महाराज की जय। सौगत वैष्णव भक्तवृंद की जय। All glory to Assembly devotees. Glory to Assembly devotees. All glory to Assembly devotees. Shri Guru Shivaranga. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shailakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svavadantikam Vandeham Shri Guru Shrijutapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Visakhanitamscha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalayatakhyo Vishwambharo Dijavaro Jugadharmapalo Vande Jagatpriyakaro Karunavataro Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Nana Shastra Vicharanayika Nipunau Saddharma Samsthapako Lokanam Hitakarinyo Tribhuvane Manyo Saranyakaro. Shri Radha Krishna Padaravinda Bhajananandena Mattaliko Vande Rupa Sanatana Raghujugo Sijiva Gopalako. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. इस कक्षा में क्या चर्चा है? भागवत का ना, ये क्या ये किताब रखे है उपदेशामृत। कौन सा श्लोक? दूसरा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह
जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह और कोई अत्याहार अत्याहार किंबा अत्यधिक संग्रह करना प्रयास अत्यधिक प्रयास च यानी प्रजल्प प्रजल्प किंबा व्यर्थ बड़बड़ ये क्या है हिंदी के और कोई भाषा है ये क्या है ये तो मराठी लग रहा है? मराठी किताब है मराठी कहाँ से आ गया इधर अत्याहार अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना ये अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और तात्पर्य भी प्रभुपाद जी के द्वारा प्रयास अत्यधिक उद्यम च तथा प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना नियम विधि विधान आग्रह अत्यधिक आसक्ति या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा जनसंग सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति च तथा लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच च तथा षड्भिः इन छह के द्वारा भक्तिमय सेवा विनश्यति नष्ट हो जाती है। उपदशामृत के श्लोक कौन लिखा है? ओरिजिनल जो श्लोक उपदशामृत के उसको श्री रूप गोस्वामी के द्वारा
ये रचित की गई है और इसकी अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। अनुवाद: जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उस सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधान को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधान को त्याग कर स्वतंत्रतापूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। सब दोहराइए। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाता है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधान को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधान को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों से संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। थोड़ा तात्पर्य पढ़ के फिर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्चा विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्धजीव भगवान के तीसरे शक्ति की वश में है। अतएव वह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंग शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत है और वे अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगी शक्ति से वश में या बहिरंगी शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी को प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बताया गया है। महात्मनां स्तुपार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्यय। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है कि जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वाले, कि सदैव अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्य का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि
राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्य की भलाई कर सके। वे अन्य की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति, समाज सदस्य के लिए, और वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्य का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा और विषय हृदय वाले व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इस श्लोकों को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने प्रारंभ से आपने ये जो तात्पर्य प्रारंभ से कहते कि जब तीनों शक्ति, भगवान की तीन शक्ति है, अंतरंग शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंग शक्ति। और जीवात्मा कौन सा शक्ति के अंतर्गत होता है? तटस्था शक्ति। तट का अर्थ क्या है? किनारा। इसलिए रूपा जी कहते कि ये तटस्था शक्ति की जो लक्षण है, ये कभी स्वतंत्र अकेले नहीं रह सकता। ये कभी अंतरंग शक्ति के अधीन होकर रहता है और कभी बहिरंग शक्ति के अधीन में रहता है। यदि ये भगवान के अंश है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। किसका? जीवात्मा का। ये बहिरंग शक्ति के जो अधीन में रहकर कार्य करती है, नहीं तो अंतरंग शक्ति के अधीन में रहकर कार्य करती है। जब ये अंतरंग शक्ति के अधीन में हो जाता है, तब इसको महात्मा कहलाता है। अर्थात वो संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में ही जुड़ जाता है। भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। कौन? जब ये अंतरंग शक्ति के अधीन में होता है, उस समय उसको क्या कहते हैं? महात्मा। प्रभुपाद नवम अध्याय के 3 नवम श्लोक को कोट करी कहते कि महात्मानांस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्यमानसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। कहते कि जो महात्मा होते हैं, महात्मानांस्तु पार्थ, ये कौन सा प्रकृति के अधीनस्थ होते हैं? दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। जैसे अगर ये बहिरंग प्रकृति के अधीन में नहीं रहते। जो महात्मा है सदा दैवी प्रकृति है। इसको हम कहते हैं कि अंतरंग शक्ति, जोगमाया, इसको जोगमाया भी कहते हैं। भगवान जोगमाया, अंतरंग शक्ति, और ऐसे ही दैवी प्रकृति, इसी शब्द में इसको कहा जाता है। ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो उसी के अधीनस्थ रहने से फिर वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। जब ये शरीर त्याग, लेकिन जब ये इसे धरा पर भी रहता, तभी भी वो सदा भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। लेकिन यदि वह बहिरंग शक्ति का अधीनस्थ हो जाता है, तभी फिर वो भगवान की सेवा करने की इच्छा उसका नष्ट हो जाता है। वो सेवा करना नहीं चाहता, वो फिर अपना इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। सदा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करता है। प्रभुपाद कहते इंद्रिय तृप्ति का हम साझे सोचते कि सही कोई हमारा शरीर का केवल इच्छा को, शरीर का इंद्रियों को तृप्त करना, या हमारे परिवार वर्गों की उनको देखभाल करना, उनकी इंद्रियों को तृप्ति के लिए कुछ करना। इसकी इलाज जो कि देश के लिए काम करते, कहते कि हम समाजवादी है, राष्ट्रवादी है, जो लोग सब कहते कि हम पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं। साधारण जो पॉलिटिकल नेता, सब राजनीतिक नेता है, सब कहते हैं हम समाजवादी, समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, यहाँ तक कि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवा करते हैं। लेकिन ये सभी बहिरंग शक्ति के अधीन है। ये भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये शिला प्रभुपाद जी ने अपने पहली बार जाकर मिले थे किसको? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले हैं कलकत्ता के बाग बाजार गौड़िया मठ में। इनके प्रभुपाद जी के एक मित्र था, उसका नाम क्या था? नरेन। तो उनको पकड़ कर प्रभुपाद जी को
प्रभुपाद जाने की इच्छा नहीं था, लेकिन ये उनको जबरी हाथ पकड़ी खींच के लेके गया। बोला आज सच्चे साधु को दर्शन कराऊंगा। प्रभुपाद जी कहते मैं बहुत साधु देखा है, हाँ मैं बहुत साधु देखा है। हमारे घर में पिताजी डेली लेके आते थे, 10-15 को हम देखा है। मेरे को कोई साधु फाधु दर्शन नहीं करना नहीं। यानी वो मित्र कहेंगे नहीं नहीं आज सच्चे साधु को दर्शन कराऊंगा, चलो तो मेरे साथ। उनका हाथ खींच के लेके गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज भी वो स्थान है कलकत्ता में। हम गए थे इस टाइम, जो मायापुर गए थे आने का टाइम, उस स्थान में गए थे, उस बिल्डिंग में। बाग बाजार गोड़ी मठ नहीं, वहाँ से तो बाग बाजार गोड़ी मठ नहीं से, वो थोड़े दूर में भक्ति विनोद आसन उसको कहते हैं बिल्डिंग को, भक्ति विनोद आसन। और उसी में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती छत के ऊपर स्थान आज भी है, जहाँ पर भक्ति ठाकुर बैठे हुए थे। अपने वरिष्ठ सन्यासी भक्तों के सन्यासी बैठकर कुछ अपने इष्ट गोष्ठ कुछ बातचीत चल रहा था। तो उस समय ये दोनों गए, जैसे गेट में गए थे थोड़ा दूर में बैठे थे, उधर दूर से ये जाके उनके मित्र प्रणाम किया था। प्रभुपाद जी भी प्रणाम किए, किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो भक्ति ये प्रणाम करके जो उठे ऐसे ही, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सीधे आंगुली दिखाए, किसको? हाँ, उस समय जो अभय चरण दे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद तो भक्त जैन करने नहीं किए थे, दीक्षित नहीं हुए थे, अभय चरण दे के नाम से जाना जाते थे, अभय बाबू। इनको सीधे आंगुली दिखाकर कहे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, why you are not taking this mission of Chaitanya Mahaprabhu to the Western world? Why not preaching in English language? हैं? प्रभुपाद जी बोले कैसा व्यक्ति है, कोई पहचान है नहीं। मैं तो आता नहीं भी आने के लिए भी तैयार नहीं था, ये मुझे खींच के लेके आया, लेकिन ये प्रणाम करते ही सीधा, क्या इसका मतलब? लेकिन प्रभुपाद जी भी कोई माने छात्र नेता थे, उनकी जो पढ़ रहे थे कॉलेज, तो भी बहुत नेता की तरफ रहते थे। तो उन्होंने साहस संचय करी कहे कि देखो, हाँ पहले चैतन्य महाप्रभु की प्रचार ना गीता भागवत की प्रचार करेंगे, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन पहले हमारा देश स्वाधीन नहीं है, उसको पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे। पराधीन देश के नागरिक के रूप में ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है। पहले हम देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में प्रचार करेंगे। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके आर्गुमेंट को खंडन किया, लेकिन नहीं, ये हमारा सनातन संस्कृति का मूलाधार नहीं है, ये हमारा संस्कृति का नहीं है। हमारा संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान, संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र पिता, एक ही सृष्टा है, कौन? भगवान है। और उनकी सृष्टि में सभी हम उन्हीं की संतान हैं। अभी जरूरी नहीं कि सब हमारा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई इंग्रेज शासन करते और कोई शासन करेगा, ये भौतिक जगत में समस्या लगा रहेगा। हमें असली कल्याण के लिए, आत्मा के असली कल्याण के लिए इनको आध्यात्मिक का मार्गदर्शन कराना है, यही असली प्रचार है। इनको आत्म तत्व के बारे में और प्रचार के बारे में इनको कहना, गीता भागवत के संदेश के इनके पास पहुंचाना है। ये प्रभुपाद जी ने जितनी युक्ति किए, सारे युक्ति को खंडन किए। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ भी तात्पर्य लिखते कि ये जो समाजवाद है, राष्ट्रवाद है, ये जो सब ये सारे ये भगवान की बहिरंग शक्ति का ही अधीन में ये सब कार्य करते। ये सब कोई सोचते हम बहुत इनको महात्मा कभी कभी कहते हैं हम, लेकिन महात्मा ये लोग नहीं है। प्रकृति में महात्मा तो वो है जो भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन में कार्य करता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, महात्मानंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मानस, जो अनन्य चित्त होकर भजन करता है, किसके? भगवान के है। अनन्य मानसों का वो जानता है भगवान ही सभी कारण के ज्ञानत्वामाम भूतादिम अव्ययम अविनाशी, जो कि सभी कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ये तत्व को जानकर जब जो सारे संसार में प्रचार करता है, गीता भागवत के आत्म तत्व की प्रचार करता है, भगवान की प्रचार करता है, तो वो महात्मा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य प्रारंभ से बता रहे, क्योंकि आजकल के कई लोग महात्मा शब्द उपयोग करते हैं। कोई महात्मा तब तक नहीं बनता है जब तक वो संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में नहीं जुड़ा हो।
हैं? इसलिए तात्पर्य प्रारंभ से प्रभुपाद जी महात्मा शब्द का व्याख्या करते कि महात्मा कौन है। महात्मा वही है जो भगवान की शुद्ध भक्त होता है। भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीनस्थ होकर भगवान की सेवा में उसका मनोवृत्ति नहीं है, तो इसको महात्मा नहीं कहा जा सकता। चाहे इस लौकिक दृष्टि से लोग इसको महात्मा कहते, लेकिन जो प्रकृति में भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, सारा जगत की कल्याण सोचता है, जन्म मृत्यु चक्र से प्राणी कैसे उद्धार होंगे उसका समाधान कुछ है, मार्ग कुछ ढूंढता हुआ उसको लोगों को प्रचार करता है, भक्ति के मार्ग लोगों को दिखाता है, वो महात्मा है। इसलिए प्रभुपाद आगे कहते श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत उपर्युक्त श्लोक में द्वैपी प्रकृति शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतरंगा शक्ति या ह्लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताता है। यह ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होती है तो उसका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव विष्णु की तुष्टि करना होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु व दुरात्माओं के भगवान की बहिरंग शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निस्संदेह हम भौतिक जगत के सारे जीव महामाया का वश में है, जिसके कार्य उन्हें त्रिविध ताप से रखता है। इसके बाद प्रभुपाद ने आगे कहते कि जो लोग बहिरंग शक्ति के, इसलिए हमें जितने भी ये संसार में जो बद्ध स्थिति में रहते अर्थात जो भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, ये सारे बहिरंग शक्ति के अधीनस्थ हैं। तो बहिरंग शक्ति की जब अधीनस्थ होता है हमको 3 प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। कौन सा दुख? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। प्रभुपाद जी का 3 प्रकार के क्लेश संसार में जो भगवान के शरणागत नहीं है, बद्ध स्थिति में है, भगवान की बहिरंग शक्ति के अनुଯାयी क्या अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, ये इनको सभी को संसार में 3 प्रकार की क्लेश भोगना पड़ता है। आध्यात्मिक क्लेश किसको कहते हैं? जो अपने मन तथा इंद्रियों के माध्यम से जो दुख हमको प्राप्त होता है। अपने मन और इंद्रियां हमको कोई दूसरा कई प्रकार के टेंशन में चिंतन में फिर उसी के माध्यम से, कोई बाहर से कुछ नहीं, लेकिन अपना इंद्रियां अपना मन वो हमको दुखी करते हैं। तो जो अपना इंद्रियां मन के माध्यम से जो दुख है, जो कष्ट हमको मिलता है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। अधिभौतिक कहते हैं जो दूसरे प्राणियों के माध्यम से हमको कष्ट मिलता है। जैसे बिना कारण से मच्छर आके काटता है, खाता है। कोई रास्ते में जाता, कोई आके ऐसे हिंसक जंतु कोई आके आपको क्या धक्कल देगा, कोई कुछ दूसरे प्राणियों के साथ माध्यम से हमको जो भय व कष्ट अनुभव होता है, इसको कहते हैं अधिभौतिक। कोई शेर से भय है, बाघ से, या कोई दूसरे व्यक्ति से हमको जो कष्ट मिलता है उसके माध्यम से और दूसरों के माध्यम से। तीसरा कहते क्या? आध्यात्मिक अधिभौतिक। अधिभौतिक क्लेश। सॉरी, मैं क्या बोला था अभी? मैं आध्यात्मिक बोला तथा अधिभौतिक बोला। अधिदैविक जो सुपर नेचुरल पावर है, अन्य जो हमसे भी जो शक्तिमान है, जो डेमीगॉड व अन्य देवताओं की पद में सब बैठे, उनके माध्यम से भी कष्ट मिलता है। इंद्र ज़्यादा बारिश करेगा, झड़ तूफान आएगा, वह ज़्यादा झड़ तूफान आएगा, ऐसा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसका पर। वो सब देवताओं के द्वारा नियंत्रित, सब एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके रखेंगे। भगवान सब एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं पूरा अच्छा है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ये सब भगवान से ही आया है। भगवान ने सब पूरा मैनेजमेंट को करने के लिए रखा है। सब डिपार्टमेंट खुद के डिपार्टमेंट के हेड बना के रखे एक एक। वाटर डिपार्टमेंट किसके अंडर है? इंद्र के अंदर है। हवा का डिपार्टमेंट पवन देव है। अग्नि फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव है। सब ऐसे से डिपार्टमेंट हेड सब देवता बैठे हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका अंडर में
विश्वकर्मा आर्किटेक्ट हैं, सब डिपार्टमेंट एक एक है, सब पकड़े, सब डेमिगॉड सब हेड बना के रखे हैं। इसलिए प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर कहता ना, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हाँ, तुम्हारा इच्छा है विश्वेश जनसंहार। क्रिएशन मान सृष्टि का डिपार्टमेंट ब्रह्मा के पास, मेंटेनेंस पूरा पालन करने के लिए कौन है? विष्णु है। और सब जो उत्पाद होगा फिर ज़्यादा उत्पाद, सब विनाश करने का डिपार्टमेंट किसके पास है? शंकर जी के पास है। तो इस प्रकार है। लेकिन ये सब जो अन्य देवताओं के माध्यम से हम कभी कभी कष्ट अनुभव कर रहा है, दैवी दुर्विपाक, तो उसको कहते हैं अधिदैविक। ये 3 प्रकार के क्लेश सबको भोगना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, 3 प्रकार के क्लेश सबको भोगना पड़ता है। भौतिक जगत में मनुष्य के शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना में संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके बाद टॉपिक के ऊपर आए जो हमारे भक्ति के बाधक है। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में थोड़ा इसको सूचना देकर इसके बाद वो तो जो विषय वस्तु इस श्लोक का उसके ऊपर आते हैं। पहला शब्द क्या है? अत्याहार। अत्याहार हमको जितनी आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक इंद्रिय तृप्ति का वस्तु को इकट्ठी करना या संग्रह करना, धन संग्रह करना, या क्या कहते और क्या, आवश्यकता से अधिक इंद्रिय तृप्ति की कोई भी साधन को इकट्ठी करना या धन इकट्ठी करना। प्रभुपाद जी लिखे हैं अत्याहार का अर्थ अधिक भोजन करना, अधिक भोजन करना या अधिक कोई भी अधिक संग्रह करना कोई वस्तु का। ये संग्रह करने का प्रवृत्ति मनुष्य के पास है। यदि कोई प्रभुपाद जी उदाहरण दे, कोई जब रास्ता में कोई चावल का बोरी पड़ा है और कोई पक्षियाँ आ जाएंगे, आके बैठेंगे तो कोई छिद्र है, बस खाएंगे, पेट भर गया, बस उड़ भाग जाएंगे उड़ के। यदि मनुष्य देखा क्या करेगा? पूरा बुरी को उठा के लेके जाएगा, लेके अपने गोदाम में रख देगा। संग और जितनी प्रकृति में हम देखते हैं, प्रत्येक पशु जितने भी, कोई पशु भी जो खाता, किसी शेर किसी को मारता है, बस खा लिया चला गया बस। कोई पशु जितना पेट भर गया बस, जितना जरूरत इतना ही, ये संग्रह नहीं करते। लेकिन मनुष्य को संग्रह करने का प्रवृत्ति है। ये जितना जहाँ जरूरी है उससे अधिक संग्रह करके रखना चाहता है। ये अत्याहार के कारण वो कई प्रकार की समस्या प्रभुपाद जी आगे समझ जाते हैं कि आजकल के पूरा विश्व में ये अत्याहार की प्रॉब्लम के लिए सारा युद्ध होता है, फाइटिंग का झगड़ा सब इसी के लिए। हमारे पूरे विश्व में जितना ज़मीन है, प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ऑस्ट्रेलिया में जितनी ज़मीन पड़ा हुआ है, यदि इसको पूरा सही खेती किया जाएगा, पूरा विश्व में कहीं भी क्या भोजन का कमी नहीं रहेगा, कोई भी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन वो बोलेगा नहीं, हमारा देश का है, अमेरिका में इनका जितनी खाना है उससे अधिक बहुत उनको अनाज उत्पन्न हो, लेकिन ये कि समुद्र के अंदर लेकर जहाज़ में वहाँ फेंक देंगे, लेकिन किसी को देंगे नहीं। दूसरे देश में लोग भूखे रहते हैं, उनको नहीं देंगे, वो समुद्र में लेके फेंक देंगे। लेकिन ये अत्याहार की प्रवृत्ति जो लोग का मैंने इसे हिंसा, इसे अज्ञान के कारण जो इनके मन में आता है, ये अत्याहार के कारण कितनी सारे समस्या शुरू होता है पूरा विश्व में। यदि सब लोग समझ जाएंगे कि हम प्रकृति में एक ही पिता की संतान है, हम सभी भाई भाई है, एक ही पिता। भगवान गीता में कहते हैं कि अहं बीज प्रद पिता, भगवान ही सबके पिता, कृष्ण ही है। जो समझेंगे हम सब भाई भाई, फिर आवश्यकता सबके लिए जितना जरूरत है भगवान जितना दे चुके हैं, सब रख चुके हैं हमारे लिए। किसी व्यक्ति के यहाँ जन्म आने का पहले उसका सारे जितना आवश्यक वस्तु भगवान रखे हैं, लेकिन हमें कृत्रिम रूप में इसके सब विभ्राट सृष्टि करते हैं। इसको छीन कर ले कहीं छुपाना, मैं रखेगा नहीं, दूसरे के नहीं, मेरा है।
हैं। मैं और मेरा की भावना के कारण व्यक्ति संग्रह करना शुरू करता है। आवश्यकता से अधिक वस्तु जानता है, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेके जाएगा कुछ लेके आया, लेकिन फिर भी मैं मेरा कहे कि वो हैं। प्रभुपाद जी कहते यदि कि अत्यधिक बनाने की जितनी हमारे आवश्यक है, कोई 2 रोटी खाएगा, एक व्यक्ति को शरीर को धारण करने के लिए रोटी चाहिए, 2-4 रोटी चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए, कुछ सब्जियां चाहिए, बस अच्छे सुस्त शरीर में रह सकता है। लेकिन नहीं, उसको और कुछ चाहिए, बहुत कुछ है। ऐसे कहते जीवार लालसा घेनी इति उति जाए, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। हैं, कहेगा नहीं, मैं ऐसे नहीं, सादा जीवन नहीं चलेगा मेरा, सादा जीवन ऊंचा विचार, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इतने में मेरा काम चलेगा कि मेरे एक रोटी और दूध हो, मिल्क और कुछ सब्जियां, कुछ दाल, थोड़ा बस कुछ बस सिंपल। वो बोलेगा नहीं, मुझे ये सारे आइटम चाहिए, ये सब चाहिए मुझे, क्या मछली चाहिए, मीट चाहिए, वो चाहिए, इतनी मसाला वाला सब्जी चाहिए, ये सब बहुत, ऐसे करके स्वयं के ही प्रकार के बीमार को उत्पन्न कराता है शरीर का। तो इसलिए अत्याहार बहुत बड़ा समस्या है, पर्सनल माने व्यक्तिगत से पूरा राष्ट्रगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अत्याहार समस्या है। प्रभु कहते कोई जो पूंजीवादी राष्ट्र है, ये कहता कि सारे धन का किसका है, जो कमाया है वो अपना है। जैसे अमेरिका आदि पूंजीवादी देश, जो जिसका बिजनेस जो कमाया उसका है, जिसका जो खेती से अनाज करे वो उसका अपना है। और जब जो कम्युनिस्ट कंट्री वाले सोशलिस्टिक देश, वो कहते कि नहीं, सब किसका है, देश का है, कहते देश का है, लेकिन वो असलियत है कि ये सारे भगवान का है। ईशाभाष्य इदम सर्वम जत किंच्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्यचित् धनम। सारे वस्तु ईश्वर का है, और जिसका जितना निर्धारित कर दिया है ईश्वर पूर्व का कर्म के आधार पर, वो इसी से इतने में ही से संतोष रहना चाहिए, ये जानते हुए कि वस्तु किसी दूसरे का उसके प्रति लोभ ही नहीं बनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते अत्याहार, हम साधारण स्तर पर यदि हम व्यक्तिगत रूप में साधारण जीवन में देखेंगे, अत्यधिक अत्याहार का डेफिनेशन प्रभुपाद जी कहते अधिक से आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, सिंपल मीनिंग है। हमारे 2 से 3 सेट कपड़ा, 3 से 4 सेट कपड़ा में चलता है, हम बोलेगा नहीं 3 से इतना ही थोड़ी हो, हाँ मेरे को 30 दिन का 30 सेट कपड़ा होना चाहिए। हाँ डेली एक पहनूंगा, एक पहनूँ, फिर रखा है कुछ कोई इधर, जैसे मैं खाने का दिया, वस्त्र का भी इस प्रकार जितना आवश्यक है। ठंडी का सीजन आया तो उसको बस 1 या 2 स्वेटर या 1-2 चादर में, एक चादर में चलता है। बोला नहीं, मेरे पास सब वेराइटी का होना चाहिए, एक स्वेटर होगा, एक कोट होगा, और कई प्रकार के हैं, जैकेट चाहिए। ऐसे कोई के पास कम से कम 15 सेट रखेगा। हाँ, तो ये सब करने से हम भक्ति में ये सब बाधक है। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, फिर हमें किसी का दुख और कष्ट का कारण नहीं बनना चाहिए। हाँ, भगवान गीता में कहते कि जस्मानद विजते लोको लोकान्मद विजते चज हर्षामर्ष भय उद्वेगई मुक्तज सच में प्रिय। भक्ति योग में है भगवान कहते मुझे प्रिय कौन होता है, जो दूसरे का उद्वेग का कारण नहीं बनता है, बस जो दूसरों के द्वारा स्वयं भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। जस्मानद विजते लोको लोकान्मद विजते चज, जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ये सबसे मुक्त रहता है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। हम जब दूसरे के उद्वेग के कारण बनेंगे, भगवान को कैसे प्रिय बनेंगे। वैष्णव तो सबके मित्र होता है, सभी का सेवक। आपने को इसलिए क्या सोचता, मैं सबका सेवक हूँ। वो किसी सेवा लेना नहीं चाहता है, सब दूसरे की सेवा करना चाहता है, सभी की सेवा। तो इसीलिए अत्याहार करना न पर्सनल व्यक्तिगत रूप में भी जरूरत नहीं, न समाजगत रूप में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरत नहीं है। लोगों को ये समझें कि प्रकृत स्थिति क्या है। जो धन है पूरा विश्व के, ये भगवान का है, और जितनी भी जीवात्मा है ये सब भगवान का ही सृष्टि है।
इसलिए सभी का अधिकार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के अत्याहार करने बोले, ऐसे अत्याहार करने से जो लोग विशेष रूप में भक्ति करना चाहते हैं भगवान की, तो इनको इससे बचना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना। विशेष रूप में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी का अर्थ है विद्यार्थी, वो पढ़ने आता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदाम तो गुरोरहितम आचरण दासवत्नी च गुरु सुदृढ़ सुहृद। ब्रह्मचारी कहाँ रहता है? गुरुकुल में रहता है, गुरु के घर में रहता है। ब्रह्मचारी का अपना बिल्डिंग नहीं होता है, अपने घर नहीं होता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल है, गुरु के घर में रहता है। और जो खाना आगे प्राचीन वैदिक युग में तो जब तक गुरु खाने के लिए नहीं बनेगा, ब्रह्मचारी नहीं बोलेगा, तब तक ब्रह्मचारी भी खा नहीं सकता था। प्रभुपाद जी तो इतने दयालु है, सारे को नियम बांध दिए, प्रसाद कब खाना है, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, लंच का टाइम के टाइम पर सब मिल जाता है। आपको जो सप्लाई चाहिए जितना सप्लाई भी मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है। इसकी अलावा फिर बाहर में कहीं है कुछ और प्रयास करना इंद्रिय तृप्ति के साधन के लिए है। फिर कोई मेंबर को पकड़ना, फिर इसको पकड़ना, फिर लाओ मेरे को और कुछ चाहिए है, कुछ पर्सनल बैलेंस रखना है, बैंक बैलेंस रखना ब्रह्मचारी का काम नहीं है। ब्रह्मचारी महाराज यदि ब्रह्मचारी है तो साफरन पहन के रखा है, बाहर में अपने फ्लैट में, फ्लैट से अपना कार में चढ़ के मंदिर में आ रहा है, और फिर इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, मंदिर में रहता है। ब्रह्मचारी को जो कुछ मिलता है सारे गुरु को दे देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। संपत्ति जानता है सारे गुरु का है, प्रभुपाद जी की है। तो इसलिए अब जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं इनको भी जितना इनकम है तो 50% देना चाहिए। किसमें? रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार 50% मंदिर का सेवा है, भगवान की सेवा गुरु को देना, वैष्णव को है, ब्राह्मण वैष्णव मंदिर का सेवा है। तो इसलिए अत्याहार यदि हमें ऐसे हैं, अधिक धन हमारा है, प्रभुपाद जी कहते हैं अधिक जो कुछ है इसको हम भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम अद्य संग्रह करेंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, पर हमारा आवश्यकता से अधिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को इकट्ठी करके रखेंगे, तो फिर ये भक्ति की बाधक है। हमारे मति को हमें भगवान के चरण में लगाने में ये सब बाधक है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसलिए कहते हैं कि सादा जीवन, तात्पर्य जी के प्रारंभ से प्रभुपाद लिखते हैं, सादा जीवन ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यह है भक्ति का जीवन। जितना हमारा आवश्यकता शरीर को मेंटेन करने इतना ही खाना है, और इतनी आवश्यकता वस्तु केवल साथ में रखना है। और अधिक जो कुछ है सब कृष्ण है, कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अत्याहार नहीं करना, आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु इकट्ठी में संक्षेप में, क्योंकि पूरा श्लोक एक एक करके कहने से पहले बहुत टाइम लग गया है। अत्याहार फिर प्रयास, प्रयास के अर्थात भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना, अत्यधिक उद्यम करना, कठोर परिश्रम करके उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति के साधन है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करके धन कमा के उसको चाहिए। मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो उसके लिए इसको तो फिर परिश्रम करके धन कमाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ से उसके लिए फिर इसका साधन भक्ति छूट जाता है। क्योंकि धन कमाने के लिए हम देखें अमेरिका में, विशेष रूप पाश्चात्य जगत में देखोगे कैसे पैसा के लिए लोग काम करते हैं। तो उनको सुबह उठ के 4 बजे से निकल जाते हैं घर से। वीक में एक दिन कुकिंग करते हैं। कौन सा दिन? संडे का दिन। संडे के दिन कुकिंग करके फ्रिज में रख देंगे ऐसे, पूरा थोड़ा थोड़ा डेली निकल कर के इसको गर्म करके फिर खाएंगे। पूरा वीक ताज़ा केवल खाएंगे, केवल एक संडे का दिन है। कैसी जीवन है, किस लिए? डॉलर। 1 घंटा दिन मेरे रुक जाएगा, फिर मैं 200-300 डॉलर मेरा मिस हो जाएगा। इतना घंटे काम करते, गधे के समान काम करेंगे पैसा के लिए। तो ये सारे प्रयास है, बेकार की प्रयास है। इसी को कहते प्रयास। इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए जो प्रयास करना,
क्या करना है तुमको? इतने सारे डॉलर कमाएगा, 10 करोड़ रुपया लगेगा, मैं आऊँगा, पैसा हो जाएगा, फिर इंडिया में आऊँगा, आके ज़मीन खरीद लूँगा, घर बनाऊँगा। हैं? ये पूछा भाई क्या कर रहे हो? एक वक्त मुझे बोल रहा है, अटला ने बोला कि महाराज मेरा अभी क्या मैंने इसे 8 करोड़ लगभग मेरे पास हो गया पैसा, मैंने जो इंडिया की मनी के हिसाब से। अभी क्या करना चाहिए मुझे? और धन कमाना चाहिए और मैं सोच रहा है इंडिया में जाके थोड़ा ज़मीन खरीद के एक बिल्डिंग बनाऊंगा, एक अच्छा गाड़ी खरीदूंगा और ऐसे हैं। लेकिन ये जो धन कमाया इतने परिश्रम करके रखा, धर कोई भगवान के लिए कुछ मंदिर बन रहा कहीं थोड़ा दे देते हैं, इसमें दे दिया, कोई भगवान के लिए कुछ करे, सारा किसकी कल्याण करे, हैं लोगों की दूसरे क्यों दे। जो अपने के लिए बिल्डिंग बनाएगा कि मर्सिडीज लेके गाड़ी खड़ा कर देगा घर के सामने और ये सब करेगा, लेकिन लेके जाएगा कुछ, हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं। ये शास्त्र में लिखे कि एक गांव में एक सेठ जी था, वो बहुत परिश्रम करके बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, बड़ा बिल्डिंग बना के बहुत को सारे मॉडर्न यूटेंसिल सब लगाए घर में सो रख के, हाँ, किसी को कभी कुछ देता नहीं था, प्रयास कर बहुत परिश्रम करके कमाया। बाद में उसका मृत्यु हो गया, बुढ़ा होकर मर गया तो आसक्ति तो उस घर में था, और थोड़ा कर्मकांडी कुछ करता था, सब पूजा, तो भगवान की कृपा से इसका पूर्वजन्म स्मरण रहा, जो बड़ा हो गया स्मरण हुआ, दे मैं पिछले जन्म में ये जो घर है सबसे अच्छा घर जो मेरे गांव का, वो मैंने ही बनाया था, घर मेरा ही था, है। और इस जन्म में तो अपने कर्म के आधार पर इसको मोची का घर में जन्म मिला था, उसी गांव में एक मोची का घर में जन्म मिला। इसलिए क्या करता था, एक बैठ के रोड साइड में कहीं, हैं, धूप में एक छतरी, वहाँ सबका कल्टा पीटता था, किस में, बूट में, है, चमड़ा की सिलाई करता था। लेकिन इसको बीच में याद आता था, अरे वो घर तो मैं ही बनाया था पिछले जन्म में, हैं। और ये घर का मालिक जो बैठा है वो मेरा ही लड़का था, वही मेरा लड़का है। तो एक दिन साहस करी, बोला बहुत पसीना होता है, इतना धूप में बैठ के मैं क्या करूँ, ये मैं जाता हूँ, एक दिन यदि वो लड़का को मेरा ही लड़का पूर्व जन्म में था, इसको कन्विंस कर दूंगा, हैं, कि पिछले जन्म में तू मेरा पुत्र था, मैं तुम्हारी बाप था, ऐसे कह दूंगा। और मेरे लड़का जैसे बहुत जल्दी समझ के मेरे एक कमरा दे देगा रहने के लिए, वही सारे में बनाया था परिश्रम करके, एक कमरा दे देगा रहने के लिए, 2 टाइम मुझे खाने के लिए दे देगा, बस मैं तो कोई हाँ कर फिर रास्ते एक कट्टा पिटना नहीं पड़ेगा। एक दिन साहस करके गया, बोला कॉलिंग बेल वही लगाया था जो कॉलिंग बेल दिया, उसका लड़का निकल के आया, क्या है, दिखाई मोची है, क्या है, नहीं मैं कुछ आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। अरे एकांत में क्या बात कर, मैं अकेले ही हूँ, बोल। तो बोला है मुझे मेरा पूर्वजन्म का स्मरण हो रहा है। और क्या स्मरण हो रहा है? पूर्वजन्म का स्मरण हो रहा है कि पूर्वजन्म में मैंने ही मेहनत करके बहुत परिश्रम करके धन कमा के ये मकान बनाया था, और तुम ही मेरे पूर्वजन्म का लड़का है और मैं तुम्हारे बाप था। इतना कह कि मेरे बाप बनने के लिए आया, दंडा को नौकरी बोले, दंडा तुम्हें क्या दिखाता हूँ, मेरे बाप बनने आया है। भागा, ये डर से लौटा, वो दंडा उसका हाथ ये भागा, हाँ। तो प्रभुपाद के संसार ऐसा ही है, तो आवश्यकता से अधिक धन कमा के है, हाँ, क्या जरूरत है, अधिक से बड़ा मकान बनाना, अच्छा से अच्छा गाड़ी रखना, धन बैंक बैलेंस बनाना, इसका कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कभी भी बैंक बैलेंस रखने के सापट में नहीं रहते थे। जितनी भी धन मिलता था प्रभुपाद जी तुरंत ही कृष्ण भावना आंदोलन को कैसे एक्सपांड करना है, नया केंद्र खोलना, नया मंदिर बनाना, इसमें सारे उपयोग करते थे, हैं। तो जानना चाहिए अत्याहार करके, उसके लिए अत्याहार करते हैं, इंद्रिय तुम साधन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, कठोर प्रयास करके धन कमाने से क्या फायदा होता है, कोई लाभ नहीं है। ये हमारे भक्ति का बाधक है, अत्याहार प्रयास, इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्रयास। लेकिन वही प्रयास यदि भगवान के भक्ति में करोगे, आगे श्लोक में पढ़ा जाए, उत्साह, हैं, उत्साहित होकर भगवान की सेवा में लगाओगे, फिर वो भक्ति का अंग बन जाएगा। लेकिन ये प्रयास करके धन कमा के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाओगे, ये तुम्हारे भक्ति का बाधक बनेगा, हैं। तो इसलिए प्रत्याहार
प्रयास, इसके बाद क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प जो अनावश्यक बातें करना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हया भालो ना खाइबे और भालो ना पारिबे। अमानी मानद हया कृष्ण नाम लभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। बस सिंपल आदेश गोस्वामियों के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश दिए हैं। तो इसलिए प्रजल्प नहीं करना, ग्राम्य वार्ता जो कृष्ण की संबंधित बात नहीं है, जो गीता भागवत भगवान के जन्म कर्म लीला उपदेश इसके संबंधित नहीं है। खाली बेकार में समय को वेस्ट करना है। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ये सब फालतू चीज़ है। इसे चर्चा करके समय को व्यतीत करना है। प्रभुपाद जी कहते मेढक को पता नहीं चलता है, सांप को नहीं पता चलता है मेढक कहाँ पर है। मेढक उसका आहार होता है किसका? सांप का। मेढक, लेकिन मेढक अपने आप आवाज़ करता है, पानी के पास किनारे पर बैठ के क्या करेगा? ट्रे 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 आवाज़ करेगा, तब सांप पता चलेगा यह बैठा है। वो पीछे से सांप आता आके इसको निकल लेता। ये संसार के लोग ऐसा ही है। बद्धजीव क्या करता है? ऐसा ही फालतू प्रजल्प करके है, समय को बिता देता है। जानता नहीं एक क्षण का जब समय बीत जाता है दोबारा आने वाला नहीं है। आयुष्य क्षण कोटि न लभत स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने से एक क्षण का समय जो बीत गया, प्रभुपाद जी कहते, चाणक्य पंडित कहता वापस नहीं आएगा। तो बोलो कि वापस आ जाए, वो समय नहीं आएगा। इसलिए जो समय मिला इसको प्रजल्प करके बिताने के लिए नहीं, इसमें से कोई लाभ नहीं होता है। फालतू प्रजल्प करना। न्यूज पेपर आज क्या न्यूज है, आज क्या ऐसे करके ऐसे हुआ है। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते कि ये सारे प्रजल्प, यहाँ तक जितने सब साहित्य लिखते हैं, बड़े बड़े कवि साहित्य सब जो डिटेक्टिव नॉवेल सब मैगजीन लिखते हैं, ये सारे ये क्या प्रजल्प का ही अंग है। ये जो मन में जो प्रजल्प करने का भावना शुरू रहता है, उसको वो सब निकल आता है किसमें से? इनके लेखन के माध्यम से है, किताब के रूप में। ये सारे बेकार के हैं, कुछ लाभ नहीं है। जो ग्रंथ में केवल कृष्ण के बारे में कुछ व्यक्त किया गया है वो न्यूज है। भागवत के आजकल के जो साधारण लोग, उनको सब ये सब न्यूज अच्छा लगता है। और जो असली न्यूज है भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, सृष्टि कैसे हुआ, जीव तत्व, शक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, ये सब चर्चा की गई, वो भागवत को नहीं पढ़ेंगे, वो न्यूज नहीं से जानेंगे। सृष्टि कैसे हुआ है, सृष्टि का कर्ता कौन है, कौन सृष्टि क्या है, भगवान कौन है, जीव क्या, ये सब जो तत्व, ये सारे न्यूज दिया गया इसमें। आध्यात्मिक जगत कहाँ है, भौतिक जगत कहाँ है, ये सारे हैं। स्वर्ग मर्त्य, ये सब क्या, इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसमें? श्रीमद् भागवतम में। ये नहीं पढ़ेंगे। और जो भागवत पढ़ के जो सिद्धांत को समझकर भक्तजन जो हरि कीर्तन में लग जाते हैं, भगवान की कीर्तन करके रास्ता में जाते थे, बोलते हैं बेकार के लोग हैं, अरे टक लोग हो गए, क्या है रास्ते में चल रहे, क्यों काम नहीं है, फालतू में बस। तो असली काम तो भक्त लोग करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करते, भागवत के प्रचार करते, बुक डिस्कशन करते हैं। लेकिन नहीं, मूर्ख लोग उनको ही बेकार समझते हैं। और प्रकृति में उनके टाइम ही बेकार में जाता है प्रजल्प करने में, फालतू चीज़ है। तो इसलिए ऐसे प्रजल्प करने से भक्ति नष्ट होता है। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ये सुनना नहीं कि मैंने इसकी चर्चा नहीं करना है। भक्त में जो समय मिला, भगवान कैसे कहते, मेरे भक्त कैसे होते हैं? मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्याम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते कि मेरे भक्तों की मति चित्त सदा मेरे चरण में लगा रहता है, इनके जीवन का संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। मच्चित मद्गत प्राणा, परस्पर में भक्त जो मिलते हैं क्या बात करते हैं? केवल गीता भागवत भगवान के संबंधित कुछ बात करते हैं, सांसारिक की बात नहीं करते हैं, प्रजल्प नहीं करते। बोधयंत कथयंत क्षमाम तुष्यंती, इसी में इनको परम संतुष्टि अनुभव होता है। तो इसलिए 3 गया, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प नहीं करना।
अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह प्रभुपाद जी कहते कि ये दो शब्द का संधि विच्छेद होकर ये नियमाग्रह हुआ। इसमें दो शब्द है, नियम अग्रह, नियम आग्रह, दोनों मिलके नियमाग्रह शब्द होता है। नियम आग्रह का अर्थ प्रभुपाद जी कहते कि कोई नियम को पालन करता है लेकिन उद्देश्य को नहीं जानता है। कोई हर दिन मंगल आरती आता है, बस सब साधन भक्ति करता है टाइम पर सब आप, लेकिन वो उद्देश्य नहीं जानता है। किस लिए जानता? यदि ऐसा करूँगा तो मुझे सब लोग अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा भक्त है, डेली आता है, कभी भी मिस नहीं करता है। भागवत भी डेली कक्षा में बैठता है, लेकिन भागवत उसका एक कान में निकलता है, एक कान में सुनता है, इस कान में निकाल देता है उसको। लेकिन केवल सम्मान के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए केवल वो विधि को पालन करता है, लेकिन उद्देश्य को नहीं समझता है, तो ऐसे जो इसको कहते हैं नियम आग्रह, नियम को पालन करता है लेकिन उद्देश्य को नहीं जानता, किसी लिए पालन करता। प्रभुपाद जी ने क्यों नियम रखा है? सो नित्यम भागवत सेवाया, क्यों भागवत कक्षा में प्रत्येक दिन बैठने के लिए प्रभुपाद जी रखा है? कि कहते कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नष्टि की। प्राय जितने भी अनर्थ भक्ति में, ये भागवत नित्यम भागवत सेवा करने से, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा से, ये करने से ये अनर्थ नष्ट होते हैं। हम इसको नहीं समझे। केवल अगर कोई बैठता है, नहीं बैठेगा तो वो अथॉरिटी बोलेगा, वो बोलेगा, इसलिए खाली टाइम मेंटेन करने पर खाली अपना बैठता है, लेकिन उसको कोई इच्छा ही नहीं, तो अंतःकरण में भागवत सुनने का कोई इच्छा नहीं है। टाइम पर केवल ऐसी आग्रह करके केवल झूठा प्रशंसा बा स्वयं का कुछ सम्मान, इसे आशा रखकर केवल नियम पालन करता है। जब इसे इसी प्रकार के विधि विधान को पालन करने से ये भक्ति में आगे बढ़ने में हमको सहायता नहीं करता है। इसको कहते हैं नियम आग्रह। नियम को पालन करता है, क्यों पालन करता है? उद्देश्य को नहीं जानता है। और दूसरा कहते हैं अग्रह, वो नियम कोई पालन नहीं करता, वो पूरा सब कुछ नियम को तोड़ के मनमाना से कार्य करता है। वो कहता पढ़ लिया, मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया है कि कहा गया कि इसमें है जो भगवान को सदा स्मरण करना, यही सारे साधन भक्ति का लक्ष्य है। साधन भक्ति का क्या लक्ष्य है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट सिंह, स्मार्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित, सर्व विधि निषेधेषु एतैरेव किंकर। सारे विधि निषेध इसी के लिए पालन करते हैं, भगवान को सदा स्मरण करने के लिए। अरे मेरा तो हमेशा भगवान स्मरण हो रहे हैं, मेरे को क्या करना है? मेरे लिए क्यों पड़ी? ये तुम्हारा लिए। ठंडी हो रहा है इसलिए वो मंगल आरती में नहीं आता है। बहुत ठंडी होता तो कंबल रजाई गुड़ के सोता है, लेकिन वो मंगल आरती नहीं आएगा। उस जगह होकर तो बोले अरे मेरा स्मरण हो रहा है, और रजाई का अंदर में भगवान के ध्यान कर रहा है। ये अग्रह, नियम अग्रह, नियम को तोड़ता, कोई से पालन नहीं करेगा। तो ये दोनों भक्ति का बाधक है, नियम अग्रह और नियम आग्रह है। कोई नियम पालन करता है, उद्देश्य को नहीं जानता है, और जो नियम सारे नियम को तोड़ के मनमाना कार्य करता है, गुरु साधु शास्त्र कुछ नहीं मानता है, मतलब मैं जानता हूँ क्या करना, सब जानता हूँ बस। ये दो प्रकार के व्यक्ति भक्ति करने में योग्य नहीं होते हैं। आस्ते आस्ते भक्ति, यदि कुछ किया पहले, ये नष्ट विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, इसके बाद जनसंग, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण कैसे होना चाहिए? असत्संग को त्यागना है, अर्थात अभक्तों की संगति नहीं करना। प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते कि असत्संग का क्या अर्थ होता है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, और दूसरा असाधु कौन है? कृष्ण अभक्तार। इनके संग नहीं करना। कृष्ण अभक्त में कौन कौन आते हैं? मायावादी, शून्यवादी, जो भगवान को मानते नहीं हैं,
सारे जगह सबका सब कुछ माया है, हैं? सभी भगवान है, तुम भी भगवान है, मैं भी भगवान, सब हैं। जो मायावादी जो लोग होते हैं और शून्यवादी जो लोग, बुद्धिस्ट लोग, सब शून्य है, हैं? भगवान को जो नहीं, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब जिसको विश्वास नहीं है, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र ही कहता कि ये दोनों को खंडन करते, किसको? निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवाद, निर्विशेषवाद शून्यवाद ये भक्ति की बाधक है। इसीलिए महाप्रभु कहे कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, हैं? ये सभी माया है और सभी भगवान है उनका जो फिलोसफी ऐसा ही है, सभी जो संपत्ति सब सबका है, तुम्हारा पैसा मेरा है, मेरा पैसा तुम्हारा है, हैं? मायावादी बहुत आसान से बोला ठीक है, तो उसका पकड़ में जितना पैसा निकाल लेना। बोला क्या? बोला अरे क्या फर्क क्या है, सब है ना, एक ही है, हैं? तो ये सब ये जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण को नहीं मानते, स्वयं भगवान में ही ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि है, बस। नर नारायण भवे, कोई सन्यासी आश्रम आएगा तो सन्यास ले लिया तो वो भगवान बन गया, नारायण बन गया। नमो नारायण, एक सन्यासी दूसरे को क्या प्रणाम करे, कैसे बोलेगा? नमो नारायण, हैं? तो ये जो कृष्ण अभक्त है लोग हैं, मायावादी शून्यवादी, हैं? निपट भौतिकतावादी लोग जो कुछ मतलब नहीं है, उनको केवल धन कमाना, बस बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना, ये सब है, किसी लिए कर रहा है वो जानता नहीं है, बस अभक्त है। उनको भगवान के बारे में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, हाँ? ये कृष्ण अभक्त है। और कौन है? स्त्री संगी। यहाँ पर स्त्री संग नहीं कहा गया, क्या कहा गया? स्त्री संगी, अर्थात काम लोलुप होकर जो स्त्रियों के पीछे भटकता है, किसी सुंदर स्त्री को सदा उसके मन में उपभोग की वासना रहता है, इसलिए स्त्रियों के साथ सुंदर स्त्रियों के पीछे में पैसा है तो बस घूमता रहता है। अवैध स्त्री संग जिसको कहते हैं, उसमें जो सदा समय को बिताता है, ऐसे कुछ नहीं, जितने बातचीत सारे उसी के बारे में बातचीत। किसके बारे में बातचीत करेगा? वो स्त्री कैसे हैं, वो स्त्री कैसे है, वो क्या है, ये क्या है, फालतू सारे जो फालतू मैगजीन पढ़ेगा सब है, सब जब फिल्म का मैगजीन पढ़ेगा वो सब है, सो आजकल बहुत कदर जो मैगजीन से मिलता है वो सब पढ़ेगा, वो सब पढ़ेगा। स्त्रियों की संग के लिए सदा लड़ाई रहता है, स्त्रियों को केवल अपना इंद्रियों की उपभोग करने का एक सामग्री सोचता है, इसी को कहते स्त्री संगी। ऐसा जो पुरुष जिसके मत में सब समय केवल स्त्रियों को भोगने का वासना भरा हुआ है, ऐसे पुरुष के संग नहीं करना। उसके संग करोगे तो आपके बारे में वो केवल आपको वही फालतू बात कहता रहेगा, भक्ति के संबंधित कोई बात नहीं करेगा। तो इसलिए कहते कि ये दोनों भक्ति की बात है। जनसंग और सत्संग, और सत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव के आचरण ऐसे ही होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये दोनों संग से बचना चाहिए, निर्विशेषवादी शून्यवादी कृष्ण भक्तों से संग नहीं करना, और स्त्री संगी जिसको केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंतन है। हो सकता कोई डेमीगॉड का पूजा वो करता है, कहीं शंकर का मंदिर में जाता पानी डालता है और ये करता है, इसको करता है, लेकिन यदि इसकी कलुषित इंद्रियां हैं, इंद्रियों की चिंतन धारा पूरा संपूर्ण कलुषित है, ऐसे व्यक्तियों से संग नहीं करना। जो अन्य पूजा देवताओं की पूजा करने वाला डेमीगॉड वर्शिपर, इनकी भी संग नहीं करने का। जो शुद्ध भक्ति करेगा फिर कृष्ण भक्तों के साथ केवल रहता है, कृष्ण भक्तों की संगति है। इसलिए जन संघर्ष दौल्यम च, अंतिम क्या है? लालची बनना है। जितना मिला आपको इसमें संतोष रहना चाहिए, जानना चाहिए मेरे प्रारब्ध कर्म के आधार पर मुझे इतनी भगवान ने दिया है, और उसी को मैं बस मेरे उपयोग करके मैं अपना जीवन निर्वाह करूँगा। ये न सोच कर वो लालची रहता है, जितने मिलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव बना हुआ है। इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं कि इसको पैदल में जा रहा है, जो देखेगा कि कोई साइकिल में जा रहा है तो बोला मुझे साइकिल मिल जाएगा तो अच्छा है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। साइकिल मिल गया, फिर साइकिल चल के जाता है तो किसी स्कूटर में जाता देखेगा तो बस सोचेगा हमको बाइक हो जाएगा तो अच्छा है। बाइक में मिल गया, फिर क्या सोचेगा? अरे बारिश में भीग जाता हूँ, हवा आता है, ये
कार हो जाएगा, देखिए दूसरे कार में भी कार हो जाऊँ तो अच्छा, इसके लिए बहुत परिश्रम करके धन कमाता है। कार मिल जाएगा, कार मिल गया तो फिर ये इंडियन मॉडल कार अच्छा नहीं है, कोई जर्मन मॉडल की कार हो जाता अच्छा है, हैं? कोई विदेशी कार मिल जाएगा तो अच्छा है। फिर मर्सिडीज, कोई ऑडी, कोई BMW और कुछ पास ये भी हो गया तो अभी बोल गया अरे ये भी ठीक नहीं है, सीधा मेरे छत के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए, हैं? एक व्यक्ति बॉम्बे में है, उसका छत में हेलीकॉप्टर उतरता है, पहले गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता लेकिन अभी परमिशन दे दिया है। अंबानी फैमिली, अंबानी परिवार में उनका छत ऐसे मतलब छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है। लेकिन ये जितने जो कुछ होगा नहीं, इसे समस्या समाधान हो जाता ना क्या है? ये लालच है, लालची बनना, जितनी मिलने पर भी और कुछ चाहिए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, ऐसे है। ऐसे व्यक्ति सदा दुखी रहेगा, दुख का समाधान इससे नहीं होता है। फिर वो हमारे वृंदावन में एक साधु हुए तो उसके पास फिर वो आगे पल के बोले मेरे बड़ा लड़का का ये कोई पुत्र नहीं हो रहा है, कुछ कर दो, 1 करोड़ रुपया उसको दे के गया, चेक दे दिया 1 करोड़ रुपये, कुछ उनका पूजा कुछ कर दो, पाठ पढ़ रहे हैं, कुछ कर दो, जैसे उसका आशीर्वाद में हनुमान को प्रार्थना कर दो अच्छे से, जैसे उसका लड़का हो जाएगा। ये समस्या सारे समाधान कभी नहीं होता है ये भौतिक उपाय से है। भौतिक उपाय से कभी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो विश्व कृष्ण भक्ति नहीं करेगा। है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त केवल ही शांत रहता है कि उसके मन में कोई इच्छा, जो भगवान की इच्छा से मिला उससे प्रसन्न रहता है और सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान के नाम जपता है, भागवत पढ़ता है। यदि कुछ भगवान की इच्छा से कुछ अधिक धन इसको मिला, इसको भगवान की सेवा में, कृष्ण सेवा में समर्पित कर देता है। वो जानता है मैं कुछ लाया ना कुछ लेके जाऊंगा, जो भी धन है मेरा जितना आवश्यक है, मेरे केवल शरीर को निर्वाह करने के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, और जो अधिक है तो बस हैं कृष्ण का है, सारे कृष्ण का है। जो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठी करता है और उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करता है, वो चोर है। शिव कहते हैं चोर, क्यों? सारे भगवान का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, ये सारे भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। है कृष्ण का सहन कृष्ण की सेवा के लिए लगेगा, ऐसे भावना रख के जो भक्ति में है फिर करे, फिर इसका मन स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, सत्वगुण की स्थिति में रहता है, तो फिर वो जो नाम लेगा शुद्ध नाम लेने में समर्थ हो जाएगा। हैं आज यदि उसके मन कलुषित है और ये सब विधिया अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये 6 क्रियाओं के द्वारा यदि वैसे कहा गया कि भक्ति कभी नाश नहीं होता है, जो जितनी % भक्ति किया इस जन्म में, अगला जन्म फिर वहीं से स्टार्ट करेगा, भक्ति पूरा नष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी रुकावट आ जाती है भक्ति में, आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ फिर भी रूप गोस्वामी कहते कि नहीं, ये सब क्रिया में यदि जोड़ जाएगा आस्ते आस्ते उसकी चेतना कलुषित हो जाएगा और भक्ति में अग्रगति करना इसके लिए संभव नहीं है। षड्वीर भक्ति हो तो कहते विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इसके भक्ति का जो आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो रुद्ध हो जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं इसको पूरा पढ़ता तो बहुत व्याख्या करना, फिर ज़्यादा संक्षेप में सारांश केवल आपको कहा है। तो कोई किसका प्रश्न फिर भी 9:30 होने वाला है। किसके कोई प्रश्न है? समझ गए भाई? ये वार्ड जो कम से कम ये अर्थ तो एक शब्द का अर्थ समझ में आया। अत्याहार किसको कहते हैं, प्रयास किसको कहते हैं, प्रजल्प किसको कहते हैं, नियमाग्रह जनसंग लौल्यम, 6 शब्द है इसमें। हैं लालची तो और भी ऐसे कहा जा सकता, कुछ आलसी लोग होते वो भी लालच करते परिश्रम करके कुछ प्राप्त करना चाहते। कोई सोचता है करोड़पति बनने सोचता है, लेकिन सोचता है कि एक लॉटरी बेच रहा है, वो देख लिया एक टिकट हैगा, इसका फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ 25 लाख, टिकट खरीद के इसको टिकट तकिया के नीचे रख दिया,
कौन सा जो सोचता कि अपने मन से सोच रहा है मैं फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा तो क्या करूँगा, अपने प्लान बनाता है। हाँ? जैसे कोई एक मिड टाइम मटकी बनाने वाला प्रभुपा जी कहानी कहते कि मटकी बना के सब नया नया मटकी सब रखा था, ऐसा डरा बनी बहुत सुंदर, और सोचता था शादी करेगा, भला ये मटका सब बेचेगा तो इसके बाद शादी करूँगा, मेरे पत्नी आएगा, मैं इसको बोलूँगा ऐसा करना, नहीं करेगा तो मैं इसको एक थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसा ऐसा से प्लान अपने मन में सोचते सोचते ऐसा सोचते पूरा, और दूसरे जगत में था और देखा मटका सब ऐसा रखा हुआ, हाँ मैं ऐसा ही उसको थप्पड़ लगा हुआ है, ऐसा कहे कि ऐसे घुमाए तब पूरा मैं इसका मुट्ठी कहाँ लगा है, मटका में रखा से मटका तो एक के ऊपर एक पर एक गिरा तो सारे करके गिर गया है, इसका सारे धन कमाने का सपना हाँ समाप्त हो गई। इसको कहते लालच, एक लालची, प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन इसका बारे में चिंतन भी करता है। तमगुणी ऐसा करेगा, लेकिन रजगुण है तो बहुत परिश्रम करके धन कमाने प्रयास करेगा, और जितनी मिला जितना इंद्रिय तृप्ति साधन होने पर भी वो कभी संतोष नहीं होगा, और चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। इसलिए भक्त का अर्थ प्रभुपाद ने कि सादा जीवन और ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाँ, सप्तगुण के आहार खाना, भगवान को अर्पण करके भगवत प्रसाद खाना खाता है। भक्त भगवान के प्रसाद के अलावा दूसरा कुछ नहीं खाता है। भक्त का पहचान है वो केवल भगवत प्रसाद ही खाएगा। जब भगवान को अर्पण नहीं किया गया वो कभी टच नहीं करेगा, उस खाता नहीं है। तो इसलिए ये 6 नियम को पालन करना है। 6 जो नियम पता कि अत्याहार, यदि भक्ति करना है तो अत्याहार नहीं करना, प्रयास नहीं करना, अत्यधिक धन व इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, कठोर परिश्रम करना, प्रजल्प नहीं करना, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, नियमाग्रह होकर कई कार्य नहीं करना चाहिए, उसके उद्देश्य समझना है। और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए साधन भक्ति का ठीक से गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए साधन भक्ति करते रहना है। अभक्तों के संग नहीं करना, और सत्संग त्याग वैष्णव आचार संगत्या सतोवृत्ति सदा। उससे आगे आगे श्लोक में आएगा सुबह उत्साह निश्चय, कैसे भक्ति में आगे कैसे बढ़ना, फिर शाम की कक्षा में आई उसकी चर्चा की। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, हम चाहते हैं प्रजल्प नहीं करने के लिए, लेकिन जब अपने सहपाठी होते हैं, मतलब अपने दोस्त जैसे भक्त होते हैं, हम कोशिश करते हैं भगवान का बात करने का, बट धीरे धीरे वो अन्य विलाप में, अन्य टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, इसे हम कैसे अवॉइड करें? तो इसलिए अवॉइड करेंगे, आपको सीरियस बनना पड़ेगा। खुद ही करो, कोई क्या और दूसरा कौन करेगा? आपको ही सीरियस बन के इसको बंद करना। दिख रहा है कि आप सतर्क होकर देखना है, मुझे बातचीत कर रहा हूँ, किसके बारे में बातचीत हो रहा है, कृष्ण के संबंधित है कि नहीं। जो देखो कि कृष्ण संबंधित बातचीत नहीं है, तुरंत उसको मूड बनाना, मैंने बदल देना है। स्वयं सीरियस हो के प्रयास करोगे वो बनोगे, उसको और अन्य क्या करें, दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो नियम बनाएगा, मैं बात प्रजल्प नहीं करूँगा, मैं नियमित भागवत कक्षा बैठूंगा, भगवत प्रभुपाद जी किताब पढ़ूंगा। हैं, मैं बाहर का पेपर नहीं पढ़ूंगा। प्रजल्प करने का एक धारा हो जाता है, यदि डेली यदि कोई न्यूज़ पेपर पढ़ेगा, हैं, ये न्यूज़ वो न्यूज़, फिर उसको बोलने के लिए उसका इच्छा हो जाता है। अरे वो जानता नहीं, आज जो न्यूज़ है ना उसको बोलेगा, फिर दूसरे देखा है ना, काल जो न्यूज़ आज का तुमको न्यूज़ है, जानता है आज क्या निकला था। और यदि उसी न्यूज़ पेपर पढ़ने का जगह पर भागवत पढ़ेगा, फिर दूसरों को बोलेगा तो क्या बोलेगा? भागवत के संदेश बोलेगा। हैं, ठीक है। इसीलिए ग्राम्य वार्ता को रुकने के लिए ग्राम्य वार्ता के संबंधित कोई लिटरेचर व कोई ये सब नहीं पढ़ना। हैं, पेपर पढ़ेगा, फिर मैगजीन पढ़ेगा, हैं, फिर ये करेगा, फिर उसका जो लिखा हुआ वो अपने आप उसके मुख से निकल जाएगा। कभी कोई दूसरे को मिलेगा था वो क्या पढ़ा था उसको दूसरे को बताएगा। हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना, सो लिटरेचर नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, हैं, भगवान के संबंधित पुस्तक, कुछ प्रभुपाद पुस्तक पढ़ें। हैं, तो जिसको जैसे पढ़ेंगे हमारे मन में जैसे बैठे फिर उसको दूसरे को बताएंगे ना। हैं? नहीं तो हम जिसे, हाँ क्या
क्या? जो गृहस्थ लोग हैं, जो पेरेंट्स के बारे में, सबके बारे में सोचना होता है कि अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो पैसा लेना चाहिए, या ऐसा पैसा लेना चाहिए। बच्चे लोगों का या जो बाहर दुनिया में फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी पैसा चाहिए, फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए। तो सबके लिए तो इसलिए रूप गोस्वामी कहा जितना इनकम है उसको आधा % 50% दे देगा मंदिर में, ब्राह्मण वैष्णव को भगवान की सेवा के लिए, 25% घर वालों को देना, कुछ परसेंट, और 25% क्या करेगा अपना। हैं तुम्हारा पुणे में तो देते कुछ परसेंट, 10% देते ना सब कॉन्ग्रीगेशन हैं। पुणे में चौपाटी में इनके सिस्टम है उनके, ये पूरा नहीं दे पाते तो कम से कम तो इनसे शुरुआत करो बोलते हैं। जितना इनकम है, जिसका जितना का इनकम है 10% देता है मंदिर में, हैं तो नीचे है मंदिर देखा है पुणे में चौपाटी में कॉन्ग्रीगेशन, उनका पैसा है, वो लाइफ मेंबरशिप वगैरह नहीं करते, ये कॉन्ग्रीगेशन पैसा मंदिर अच्छा चलता है। हैं इसका 1 लाख की इनकम है तो वो 10,000 रुपया देगा मंदिर में जाके। जितना जिसका इनकम है 10% दे रहा है मंदिर में। वो रूप गोस्वामी कहते कितना देना चाहिए? 50% भगवान की सेवा में है। ये तो फिर हमको, लेकिन तो जो पैसा ऐसा ही भविष्य के लिए ऐसे जितना आवश्यकता है आचार्यों की शास्त्र के आधार पर, तो भविष्य के लिए ठीक है, गृहस्थ आश्रम है, भविष्य के लिए वो 25% रखेगा। हैं संचय करने का केवल अधिकार है गृहस्थ को, क्योंकि वो उसका भविष्य है जैसे कहा गया, ब्रह्मचारी का नहीं। हैं ब्रह्मचारी संचय करेगा तो फिर बाद में वही बन जाएगा, सफ़ेद बन जाएगा पहने का। वो संचय करने वाला निश्चय से फिर सफ़ेद पहन लेगा। हैं इसलिए गृहस्थों की ठीक है, परिवार चलाना, भविष्य बच्चों की भविष्य देखना, उसके लिए कुछ उसका संचय कुछ रखे, लेकिन ब्रह्मचारी का नहीं। हैं ब्रह्मचारी पर धन रखेगा तो फिर आस्ते आस्ते माइंड जाएगा वो दूसरी तरफ। हैं बोला है देख रहा हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी को नहीं, प्रभुपाद जी ने नहीं किया है। प्रभुपाद जी संचय के अगेंस्ट पूरा, जितने पैसा प्रभुपाद जी को आता था तुरंत और दूसरे कहीं सेक्टर खोल देंगे, दूसरे कहीं प्रचार में लगा देते। बैंक बैलेंस रखने के पूरा विरुद्ध में थे, प्रभुपाद जी नहीं करते थे, पैसा बैंक बैलेंस नहीं करता। हैं धन आया तो तुरंत इस कृष्ण की सेवा में लगाओ बस। हैं पैसा कितनी कठिनाई से प्रभुपाद जी पैसा के बारे में सोचते थे। आप जानते 10 महीने कि हमारा मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज थे सुरभि प्रभुपाद डिसेबल जो थे, सुरभि स्वामी उस समय थे बाद में, तो वो पेमेंट करना था, मैंने 30 लाख रुपया से वर्कर ये सब का जमा है पेमेंट के लिए। वो बॉम्बे गए, प्रभुपाद जी बॉम्बे थे, पैसा वहाँ लाने के लिए प्रभुपाद जी से गए। प्रभुपाद जी से, लेकिन प्रभुपाद जी कहे तुम्हें इधर क्यों आया? नहीं मैं सब वर्कर लोग सब चिल्ला रहे, सबको पैसा चाहिए, ऐसे चाहिए, 30 लाख रुपया मुझे लेना है। तो प्रभुपाद जी कहे क्या करना है, मुझे दीजिए, कैश दीजिए, कुछ दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले तुम कैश देने से नहीं, मैं क्या कहे कि यदि मैं तुमको इसको मैं तुमको दूंगा, चेक दूंगा। ये बोले चेक मुझे दे दीजिए, मैं चेक, बोले तुमको जो चेक में दूंगा, तुम फिर चेक जाके जाओगे कहाँ? तो इसको चेक, इसको मनी करने के लिए जाएगा ना, उस समय तो बैंक इधर नहीं था, पर कोई बाजार में वहाँ से जाना पड़ेगा, वो स्टेट बैंक में। बोले वहाँ जाने के लिए तुम्हारा रिक्शा फेयर कितना है? रिक्शा 2 रुपया, जाऊँगा 2 रुपया, आऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा फिर आऊँगा, जब 4 रुपया गया। प्रभुपाद जी बोले मैं यदि यहाँ से डायरेक्ट बैंक के माध्यम से वो दूसरे बैंक ऐसे फिर ट्रांसफ़र कर दूँगा, मेरा कितना पैसा खर्चा होगा? बोले लगभग 1 रुपया के पास। बोले 3 रुपया लॉस होगा। प्रभुपाद दिए नहीं, वो गया था पैसा लाने के लिए, दिए नहीं उसको पैसा। बोले जा मैं बैंक में भेज देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हैं प्रभुपाद जी कैसे हिसाब रखते थे, एक पैसा का, समझे? भगवान के पैसा का एक पैसा कहीं मिसयूज न हो। क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत परिश्रम किए हैं, संस्था को बनाने के लिए कितनी परिश्रम किए हैं। अमेरिका की रास्ते में
चलते थे, कोई था सहारा नहीं था। तो इसलिए हम जानना चाहिए संस्था कितनी कठिन में प्रभुपाद जी ने बनाया है, और इसको हमारा हम जो धन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, जो इसको संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगाया गया शिष्य। इसलिए गुरु भोगी नहीं बनना है, गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी हैं। प्रभुपाद जी गुरु सेवी थे, गुरु का आदेश को पालन करने के लिए सारा एनर्जी सब कुछ उपयोग किए। और कुछ तो होते गुरु भोगी होते हैं, इस्कन में सेवा करते हैं, इस्कन से ही, इस्कन के माध्यम से अपने भरण पोषण भी करना चाहते हैं। इस्कन से ही सब कुछ करना, अपना इंद्रिय तृप्ति साधन करना चाहते हैं। गुरु भोगी, गुरु त्यागी। गुरु त्यागी कौन? सब कुछ करेगा, बस बाप में गुरु को भी त्याग देता है। इस्कन छोड़ के फिर भाग जाता है और कहीं चले जाता है। जानना चाहिए हमको बासना चावल गुआ घी खाने के लिए नहीं, शिष्य नहीं बनना, रहना नहीं, हमको सेवा करना है। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इसलिए कहते हैं बासमती राइस और क्या गुआ घी, मैंने प्योर गाय के घी, पनीर सब्जी खाने के लिए हैं। यह गुरु का है। वो कहानी कहते थे, एक सेठ जी बहुत था, तो उससे कोई नौकर नहीं रहता था, तो मेरा मित्र से सलाह लिया, मेरे कोई रखो क्या करूँ, मेरा प्रेस्टीज है, मेरे बहुत अपमान, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सब लोग हंस रहे, इतना बड़ा धनी है, करोड़पति है, और कोई सर्वेंट नहीं है, बड़ा तो नौकर रखना चाहता है। ठीक है, इसको डेली खिलाओ, बासमती चावल, मैंने पनीर का सब्जी और प्योर गाय का घी, ये सब खिलाओ। तो ऐसा ही किया फिर वो, हैं एक आदमी को रखा नौकर, रख के इसको डेली खिलाता था। कुछ काम नहीं बोला, पहले कुछ नहीं बोलना, कुछ करने के लिए बोलना नहीं, 1 महीना ऐसा ही खिलाते रहना। 1 महीने के बाद में 1 घंटा का सेवा देना, दूसरे महीने में 2 घंटा, ऐसे ही 12 महीना हो जाएगा तो कितना हो गया, 12 घंटा सेवा, ऐसे बढ़ाते रहना। फिर वो बोलेगा बाद में, जब ज़्यादा सेवा हो जाएगा, ज़्यादा काम करने पड़ेगा, बोलेगा मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा, चले जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा। हाँ, छोड़ भी देता है, बाहर चले जाता है, लेकिन इसको याद आता है क्या, बासमती चावल का भात और पनीर का सब्जी है। ये कहीं भी जाता तो मिलता नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलता। फिर घूम फिर के फिर आता है, कहता सेठ जी मेरा आपके चरण में बड़ा प्रेम हो गया, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, आपकी स्मरण होता, आपका ही चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं कहीं रह नहीं पाता हूँ। आप मुझे फिर भी सेवा में लगा दीजिए, जो देना दीजिए, ठीक है मैं सेवा में। तो उसके क्या स्मरण होता है, बासमती चावल और प्योर गाय के घी और पनीर सब्जी हैं। ये कहते गुरु भोगी कहते थे। तो शिष्य ऐसे ही होते, इस्कन में इसलिए रहता है कुछ फैसिलिटी मिलता है। यहाँ रहने से कुछ फैसिलिटी मिलता है, अच्छा खाने पीना रहना, ये सब रहता है, इसलिए फिर भी अच्छा है। कम से कम तो ऐसे करके तो गुरु भोगी बनते बनते फिर आस्ते आस्ते उन्नत भक्तों की संग करेगा तो वो भी सेवी का स्तर पर आएगा। और जो त्याग के चला गया, छोड़ दिया गुरु को, तो फिर तो वो बेकार है ना। ठीक है, इसलिए हमको क्या बनना है, गुरु सेवी, गुरु की सेवा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।